آپ کو بتائیں کہ عمران خان کی اسلام آباد کی عدالت میں ممکنہ پیشی کا یہ معاملہ ہے۔ عمران خان زمان پاک سے اسلام آباد کے لیے روانہ ہو چکے ہیں۔ پارٹی کی مرکزی قیادت بھی اسلام آباد پہنچے گی۔ مزید کیا تفصیلات ہیں محمد علی بتائیں گے۔ علی بتائیے گا، اسلام آباد کے لیے عمران خان روانہ ہو گئے؟ روانہ ہو چکے ہیں اور ابھی کچھ دیر قبل جو قافلہ ہے وہ کالا شاہ کا انٹرچینج سے داخل ہوا ہے موٹر وے پہ، اور وہاں سے موٹر وے سے وزیریا موٹر وے لاہور سے اسلام آباد پہنچیں گے۔ راول پنڈی کی قیادت اسلام آباد اور دیگر کے پی کی جو قیادت ہے وہ وہاں پہ ان کا استقبال کرے گی، جس کے بعد وہاں سے وہ متعلقہ عدالت میں پیش ہوں گے، جہاں پہ توشہ خانہ کیس اور دہشت گردی عدالت میں جو کیس ان کا دفعات کے تحت درج ہے ان کا وہ ان عدالتوں میں وہ پیش ہوں گے، اور ساتھ وہ جو ان کے وکلا ہیں وہ آج کوشش کریں گے کہ ان پر فرد جرم عائد نہ ہو، بلکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ اسلام آباد میں ممکنہ طور پر آج گرفتاری بھی ان کی عمل میں لائی جا سکتی ہے۔ جی ٹھیک ہے علی، بہت شکریہ آپ کا۔ تو دوسری جانب مریم نواز نے پی ٹی آئی کو صرف تقاریر تک محدود پارٹی قرار دے دیا ہے۔ عمران خان نے انتشار پھیلانے کے لیے اسمبلیاں توڑ دی ہیں۔ پی ٹی آئی کی پوری سیاست سہولت کاروں کے گرد گھومتی ہے۔ چیف آرگنائزر مسلم لیگ نون مریم نواز کا لاہور میں لائرز ونگ کے عہدیداروں سے خطاب۔ ان کا کہنا تھا کہ نواز شریف کے ساتھ ناانصافیاں کی گئیں۔ میری والدہ کے الیکشن میں آپ سب نے ساتھ دیا، بہت جذبے کے ساتھ آپ لوگوں نے مشکل وقت گزارا ہے۔ پی ٹی آئی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے مریم نواز نے کہا کہ تحریک انصاف کی سیاست تقریروں کے گرد گھومتی ہے۔ عمران خان نے انتشار پھیلانے کے لیے اسمبلیاں توڑیں۔ انصاف کے ترازو کے پلڑے برابر ہونے چاہیے۔ اس ملک میں جو ترازو ہے اس کے دو پلڑے برابر نہیں ہیں، تو پہلے ترازو کے پلڑے برابر کرو، پھر الیکشن کراؤ۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگ الیکشن سے نہیں ڈرتے۔ پوری سیاست ہے پی ٹی آئی کی تقرریوں کے ارد گرد گھومتی ہے۔ جتھے لے کر حملہ آور وہ ہوا لاہور ہائی کورٹ میں بھی، جوڈیشل کمپلیکس اسلام آباد میں بھی۔ مریم نواز کا مزید کہنا تھا کہ عمران خان سے کیوں لاڈلے والا سلوک ہوتا ہے، کون ہے جو آج بھی عمران خان کو تحفظ دے رہا ہے۔ پی ٹی آئی اسد عمر کہتے ہیں کہ آئندہ ہفتے ملک کی تاریخ کا اہم موڑ ہے۔ ملک فسادیت کی طرف جا رہا ہے، سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا، الیکشن ہو کر رہیں گے۔ فواد چودھری کہتے ہیں کہ یوں لگتا ہے کہ نازی پاکستان پر حکومت کر رہے ہیں، مسلم لیگ نون خوف کی سیاست کر رہی ہے، جبکہ ملک جبری کشیدگیوں کے ذریعے نہیں چل سکتا۔ اظہر مشوانی کو رہا کیا جائے۔ لیاقت علی کی رپورٹ دیکھیے۔ پی ٹی آئی کے مرکزی قائدین اسد عمر، فواد چودھری، اعظم سواتی اور مسیمہ کی لاہور پریس کلب میں پریس کانفرنس۔ اسد عمر کا کہنا تھا کہ کیا پاکستان میں جمہوریت اور آئین و قانون کی بالادستی ہے؟ کیا ماورائے آئین یہ ملک چلے گا؟ جس طرح ملک چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، حالات تباہی کی طرف جا رہے ہیں۔ کیا پاکستان ایک ایسا ملک ہوگا جہاں پر آئینی جمہوریت ہے، جہاں پر قانون کی بالادستی ہے، یا پاکستان ایک ایسا ملک بننے کے لیے جا رہا ہے جو ماورائے آئین ملک چلے گا؟ اور جب ماورائے آئین چلے گا تو ظاہر ہے اس کا مطلب کہ اس ملک کے اندر نہ کوئی جمہوریت کی گنجائش ہے، نہ کوئی آزاد میڈیا کی گنجائش ہے۔ مرکزی سینئر نائب صدر پی ٹی آئی فواد چودھری نے کہا کہ مینار پاکستان جلسے بارے اہل لاہور کے لیے شکریہ کا لفظ چھوٹا ہے۔ گرفتاریوں، چھاپوں اور کنٹینرز کے باوجود لاکھوں لوگ جلسے میں پہنچے۔ لاہور سے لوگوں کو اٹھا کر مسنگ پرسنز بنایا جا رہا ہے۔ اظہر مشوانی 3 دن سے لاپتہ ہے۔ گھروں میں گھس کر خواتین کو ہراساں کیا جا رہا ہے۔ اس حکومت نے ایک نئی حد پار کر دی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اب لاہور سے لوگوں کو اٹھا کے مسنگ پرسنز بنایا جا رہا ہے۔ اظہر مشوانی آج 3را دن ہے، ہمیں اظہر مشوانی کا کچھ پتہ نہیں۔ جس طریقے سے ان کو اغوا کیا گیا، جس طریقے سے وہ اب تک مسنگ پرسن ہیں، یہ ناقابل قبول ہے۔ پی ٹی آئی قیادت نے بعد ازاں پریس کلب کے باہر پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا ہیڈ اظہر مشوانی کو لاپتہ کرنے کے خلاف احتجاجی مظاہرہ بھی کیا۔ لیاقت انصاری، لاہور نیوز۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے انتخابی تیاریاں جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ عمران خان نے پارٹی کا الیکشن سیل قائم کر دیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق عمران خان نے انتخابی امور کے لیے پارٹی الیکشن سیل قائم کیا ہے۔ ہمایوں اختر پی ٹی آئی الیکشن سیل کے فوکل پرسن ہوں گے۔ تحریک انصاف الیکشن سیل میں مرکزی نائب صدر اعجاز چودھری، ریاض فتیانہ، رائے عزیز اللہ ممبر نامزد کیے گئے ہیں۔ پارٹی الیکشن سیل انتخابات کے حوالے سے تکنیکی امور دیکھے گا، ووٹر لسٹوں، بلاک کوڈ اور دیگر تکنیکی معاملات پر امیدواروں کی معاونت کرے گا۔ عمران خان کہتے ہیں کہ انتخابات ہو کر رہیں گے، حکمرانوں کو اس سے بھاگنے نہیں دیں گے۔ حکمرانوں کے آئین سے انحراف کے لیے انتخابی عمل سبوتاژ کرنے کے خلاف آئینی، قانونی اور سیاسی
मिजाज पर जदोजहद करेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान जलसे की कामयाबी पर खुश हैं। कहते हैं कि शुक्रिया लाहौर, मुझे आपने मायूस नहीं किया। इमरान खान ने मीनार पाकिस्तान में होने वाले जलसे की कामयाबी पर लाहौरियों का शुक्रिया अदा किया। ट्विटर पर इजहार ख्याल करते हुए साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि लाहौर को बंद करने और हमारे 2000 कारकुनों को गिरफ्तार करने के बावजूद लाहौर के लोग मीनार पाकिस्तान जलसे को कामयाब बनाने के लिए बड़ी तादाद में आए। चेयरमैन पीटीआई का कहना था कि ख़ास तौर पर लाहौरियों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मायूस नहीं किया। मुझे आप पर फ़ख्र है। मरकज़ी सदर तहरीक इंसाफ चौधरी परवेज़ इलाही ने यह कहा है कि मीनार पाकिस्तान जलसे के अवाम रेफरेंडम ने फैसला इमरान खान के हक़ में सुना दिया है। शहबाज शरीफ सुन लें, इलेक्शन से राह फरार मुमकिन नहीं है। आइन से इनहराफ बारे सुप्रीम कोर्ट के सामने जवाब देना होगा। चौधरी परवेज़ इलाही ने यह भी कहा कि सदर ममलिकत ने शहबाज शरीफ के खिलाफ आइनी चार्जशीट फ्रेम की है। शहबाज शरीफ के जवाबी ख़त से कुछ नहीं होगा। हुक्मरानों को आइन से इनहराफ का सुप्रीम कोर्ट के सामने जवाब देना होगा। परवेज़ इलाही ने यह भी कहा कि इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान के सबसे मकबूल तरीन लीडर हैं। पीटीएम ने जलसे के रास्ते में हर रुकावट खड़ी की, लेकिन अवाम फिर भी मीनार पाकिस्तान पहुंचे। अवाम ने फैसला सुना दिया है कि वो आईन पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। तहरीक इंसाफ का ग्रेटर इकबाल पार्क में जलसा, कारकुनान जाते जाते मीनार पाकिस्तान को कचरा कुंडी में तब्दील कर गए। हर तरफ गंदगी के ढेर हैं, बिरयानी के खाली डिब्बे हैं, पार्टी परचम और शॉपिंग बैग बिखरे पड़े हैं, कुर्सियां भी टूट फूट का शिकार हैं। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। तहरीक इंसाफ का ग्रेटर इकबाल पार्क में जलसे के बाद मीनार पाकिस्तान कचरा कुंडी में तब्दील हो गया। हर तरफ गंदगी के ढेर, बिरयानी के खाली डिब्बे, पार्टी परचम और शॉपिंग बैग बिखरे पड़े हैं, कुर्सियां भी टूटी पड़ी हैं। पीटीआई कारकुनान ने हिफाजती जंगला भी तोड़ दिया। शहरी ग्रेटर इकबाल पार्क की हालत देखकर फट पड़े। कहते हैं मीनार पाकिस्तान हमारा तारीखी विरसा है। आज इसकी हालत देखकर अफसोस हुआ। सियासी जमातों ने इसे अपना सियासी अखाड़ा बनाया हुआ है। जलसे के बाद यहाँ हर जगह गंदगी के ढेर नजर आ रहे हैं। इधर ना बैठने की जगह है, बिल्कुल पौधों का भी बहुत नुकसान और गंदगी के जगह जगह ढेर लगे हुए हैं। अभी तक कोई सफाई का खातिर का इंतजाम नहीं हुआ। एक मैसेज भी देना चाहिए कि जब जलसा हो जाता है ख़त्म तो आप सफाई सुथराई का भी ख्याल रखें। ये एक तारीखी यहाँ पे ये एक वेन्यू है, तो इसकी हिफाजत भी हमारा कौमी फरीज़ा है। इंतजामिया ने मीनार पाकिस्तान की खूबसूरती को बहाल करने के लिए सफाई का अमल शुरू कर दिया। इंतजामिया का कहना है कि जल्द ही मीनार पाकिस्तान की खूबसूरती को बहाल कर देंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि इमरान खान इक़्तिदार में सेलेक्ट होकर आ सकते हैं, ना ही इलेक्ट होकर आ सकते हैं। सदर आरिफ अलवी अपने आइनी मनसब का मजाक उड़ा रहे हैं। लाहौर के अवाम ने इमरान खान को मुसरत किया है। राहील अली की रिपोर्ट देखिए। मॉडल टाउन में वफाकी वज़ीर इत्तलाआत मरियम औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान पर ताबड़तोड़ हमले किए और बोली, नन्ही मुन्नी जलसी में बुलेट प्रूफ डब्बे में बैठकर इमरान खान कहता है खौफ के बुत तोड़ो। 10 साल खैबर पख्तूनख्वा और 4 साल पंजाब में क्या किया, इसका जवाब दो। 25,000 अरब रुपए का कर्जा 45,000 अरब रुपए तक ले गए। वो 10 निकाती एजेंडा में गवर्नर्स मुल्क की ठीक कर दूंगा। वो कैसे ठीक करोगे? 10 साल खैबर पख्तूनख्वा में रहे हो, 4 साल वफाक में रहे हो, 4 साल पंजाब में रहे हो, तो अगर करनी थी मईशत ठीक तो 10 साल खैबर पख्तूनख्वा में क्यों नहीं की? मरियम औरंगज़ेब ने सदर मुमलिकत आरिफ अलवी पर भी तनकीदी निश्तर चलाए और कहा कि आरिफ अलवी ने पीटीआई की प्रेस रिलीज दी, वो अपने आइनी मनसब का मजाक उड़ा रहे हैं। इंसानी हुकूक के खिलाफ वर्जी उस वक्त याद न आई जब पूरी लीगी क़यादत को झूठे केसेस में जेल डाला गया। इमरान खान साहब, आपकी तमाम साजिशें नाकाम, आपका तमाम एजेंडा नाकाम। अब आप इस मुल्क में ना सिलेक्ट होकर आ सकते हैं और ना इलेक्ट होकर आ सकते हैं। आपका स्याह दौर पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के ऊपर क़यामत बनकर गुजरा है। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत मरियम औरंगज़ेब ने साबिक चीफ जस्टिस से मुतालिक सवाल पर कहा कि जो कुछ साकिब निसार ने अपनी ऑडियो लीक्स में कहा, उन्होंने इससे इनकार नहीं किया। इमरान खान अपने केसेस पर अदालत पेश नहीं होते, जलसा में पहुंच जाते हैं। मुफ्ताटी की फराहमी हुकूमत का बड़ा इकदाम है। कैमरामैन हाफिज अजीम के साथ राहील अली, लाहौर न्यूज़। कल तमाम तर रुकावटों के बावजूद अवाम जलसे के लिए निकले हैं। 2000 गिरफ्तारियां की गईं, शाहराहों को बंद किया गया। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख का वीडियो पैगाम सामने आया है। मजीद बोले कि इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल की गई, फिर भी अवाम को नहीं रोक पाए। कल अल्हम्दुलिल्लाह जिस अंदाज में मीनारे पाकिस्तान में तमाम तर रुकावटों के बावजूद 2000 से ज्यादा कारकुनों की गिरफ्तारी के बावजूद
कंटेनर्स लगाने के बावजूद, शाहराहें ब्लॉक करने के बावजूद, इंटरनेट सर्विस बंद करने के बावजूद, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे लाइव कवरेज बंद करने के बावजूद जिस अंदाज से लाहौर और पंजाब बाहर निकला है, मैं सलाम पेश करता हूँ। कौम इमरान खान के साथ खड़ी है। जितना जुल्म करोगे उतना मजीद मजबूत होगी, जितना दबाओगे उतनी खड़ी होगी। और कल जिस अंदाज से पूरे लाहौर ने बाहर आकर एक पैगाम दे दिया है, तो इससे तय कर लो कि ये कौम रुकने वाली नहीं है। हम समझते हैं कि अब बहुत हो गई है, पाकिस्तान का इलेक्शन कराओ, पाकिस्तानियों के हवाले करो। और अगर कोई प्रोग्राम है किसी के पास, मेरे कप्तान ने तो कह दिया शौक है हुकूमत करने का, तो ठीक है प्रोग्राम दो, खुद आ जाओ, डायरेक्ट आ जाओ। अगर कोई प्रोग्राम है दो और आ जाओ खुद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सदर ममलिकत आरिफ अलवी के ख़त का जवाब दे दिया। शहबाज शरीफ ने ख़त में ढेरों जवाबी गिले शिकवे कर दिए हैं। लियाकत अंसारी की रिपोर्ट देखिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सदर आरिफ अलवी को 5 सफ़ात और 7 निकात पर मुश्तमिल जवाबी खत में शहबाज शरीफ ने तहरीर किया कि यह कहने पर मजबूर हूँ कि आपका खत तहरीक इंसाफ की प्रेस रिलीज दिखाई देता है। आपका खत यकतरफा हुकूमत मुखालिफ ख्यालात का हामिल है। आपका खत सदर के आईनी मनसब का आईनादार नहीं, आप मुसलसल यही कर रहे हैं। 3 अप्रैल 2022 को आपने कौमी असम्बली की तहलील करके साबिक वज़ीर-ए-आज़म की गैर आईनी हदायत पर अमल किया। आपके इस हुक्म को सुप्रीम कोर्ट ने 7 अप्रैल को गैर आईनी करार दिया। आर्टिकल 91 क्लॉज 5 के तहत बतौर वज़ीर-ए-आज़म मेरे हल्फ के मामले पर भी आप आईनी फर्ज निभाने में नाकाम हुए। कई मौक़ों पर आप मुंतखब आईनी हुकूमत के खिलाफ काम करते आ रहे हैं। अपने खत में आपने जो लबो लहजा इस्तेमाल किया उससे आपको जवाब देने पर मजबूर हुआ हूँ। खत में कहा गया कि पीटीआई की तरफ से आपने इंतखाबात की तारीख दे दी। आपने 2 सूबों में बदनीति पर मबनी असम्बलियों की तहलील पर किसी किस्म की तशवीश तक ज़ाहिर न की। ये सब आपने चेयरमैन पीटीआई की अना और तकब्बुर की तस्कीन के लिए किया। सूबाई असम्बलियाँ सिर्फ वफाकी हुकूमत को ब्लैकमेल करने के लिए तहलील की गईं। आइन के साथ छेड़छाड़ को आपने मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया, जो नहायत अफसोसनाक है। आपका ये तर्ज अमल सदर के आइनी किरदार के मुताबिक नहीं। इलेक्शन कमीशन ने 8 अक्टूबर 2023 को पंजाब में इंतखाबात कराने की तारीख दी है। इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी आइन ने इलेक्शन कमीशन को सौंपी है। आइन के आर्टिकल 48 क्लॉज 1 के तहत सदर काबीना या वज़ीर-ए-आज़म की एडवाइस के मुताबिक काम करने का पाबंद है। वज़ीर-ए-आज़म ने खत में मजीद कहा कि इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों का आपका हवाला एक जमात के सियासतदानों और कारकुनों के हवाले से है। हुकूमत पुरअज़म है कि किसी को भी कानून हाथ में लेने, रियासत पाकिस्तान को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुँचाने की इजाज़त न दी जाए। सदर आरिफ अलवी ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को 24 मार्च को खत लिखा था, जिसका वज़ीर-ए-आज़म ने जवाब दिया। लियाकत अली, लाहौर न्यूज़। और यहाँ आपको बताएं कि कोरोना का खौफ बरकरार है। महकमा सेहत के मुताबिक शहर में वायरस फैलने का मुस्बत शरह 7% तक पहुँच गई है। सुबह में मुस्बत शरह 1.7% तक है, जबकि डॉक्टर्स ने एक मरतबा फिर एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की हिदायत कर दी है। कोरोना वायरस फैलने का खदशा बरकरार। महकमा सेहत के मुताबिक शहर में कोरोना वायरस फैलने की मस्बत शरह 7% तक पहुँच गई। पंजाब में इस वक्त मजमूई तौर पर शरह 1.7% है। शहर के सरकारी अस्पतालों में कोरोना का कोई तशवीशनाक हालत का मरीज जेर इलाज नहीं है। महकमा सेहत के मुताबिक बीमार अफराद और बच्चों को एहतियात की ज्यादा जरूरत है। छोटे बड़े सबको एक मरतबा फिर मास्क समेत दीगर कोरोना SOPs पर अमल करने की हिदायत जारी कर दी गई। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक अवाम मास्क के इस्तेमाल को तर्क कर चुके हैं, ताहम रश वाले मकामात पर मास्क का इस्तेमाल एक मरतबा फिर शुरू कर देना चाहिए। मुबारक में सैर इफ्तार में बेहतियाती, शहरियों की बड़ी तादाद मैदे के अमराज में मुब्तला होने लगी। पानी की कमी की वजह से अक्सर शहरियों को गुर्दों में पथरी की शिकायत होने लगी हैं। तिब्बी माहिरीन कहते हैं कि सैर इफ्तार में चिकनाई वाली अशिया से परहेज किया जाए। तफसीलात देखिए। रमज़ानुल मुबारक में सहरी और इफ्तार में शहरियों की बेएहतियाती, एतदाल से ना खाने पर शहरियों की बड़ी तादाद मैदे के अमराज में मुब्तला हो गई। पानी की कमी की वजह से अक्सर शहरियों को गुर्दों में पथरी की भी शिकायत। DMS सर्विसेज हॉस्पिटल डॉक्टर हमाद हसन का कहना है कि सहरी और इफ्तारी में चिकनाई वाली अशिया से परहेज करें। फलों और सब्जियों के इस्तेमाल को बढ़ाया जाए। सहरी में दही और कहवे का इस्तेमाल यकीनी बनाया जाए। इफ्तारी के टाइम और बहुत ज़्यादा चिकनाई वाली चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, तो उससे एक तो जितना आप ज़्यादा फ्रूट्स का इस्तेमाल करें वो ज़्यादा बेटर है। और एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये
सिगरेट नोशी करने वालों के लिए भी कि वो इसको जो है क्विट कर सकते हैं रमज़ान मुबारक में। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि बाजारी अशिया और मशरूबात को तर्क किया जाए। सिगरेट नोशी से छुटकारे के लिए रमज़ानुल मुबारक अच्छा मौका है। हल्की वर्जिश जारी रखनी चाहिए। शुगर, ब्लड प्रेशर और दिल के अमराज में मुब्तला मरीज अपनी अदवायात वक्त पर लें। महंगाई के हवाले से आपको बताएं कि महंगाई कंट्रोल करने के दावे बेसूद हो चुके हैं। सरकारी रेटिस में 5 सब्जियां मजीद महंगी हुई हैं। अदरक 750, लहसुन 470, प्याज 150, टमाटर 130 रुपए किलो तक फरोख्त होने लगा है। फल भी सरकारी निरखों के बरक्स महंगे दामों फरोख्त जारी है। मजीद क्या तफसीलात हैं बताएंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अब्दुल कादिर आगाह कीजिएगा। रमज़ान मुबारक भी है, अशिया खुरोनोश में कोई रिलीफ नहीं दिया जा रहा, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, रमज़ानुल मुबारक जो है वो शहरियों के लिए जो है महंगा साबित हो रहा है, क्योंकि जो सरकारी महकनामे हैं वहाँ इसमें सब्जियों की कीमतों में इजाफा किया गया जो है। खुसूसी तौर पर प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक जो है इसकी कीमतें शहरियों के लिए परेशान कुन बन चुकी हैं। यहाँ प्याज 5 रुपये महंगा करके 125 रुपये मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में प्याज 125 के बरस 150 रुपये फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। टमाटर 105 रुपये मुकर्रर किया गया, लेकिन टमाटर मार्केट में 140 रुपये फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। लहसुन चाइना 5 रुपये महंगा करके 360 रुपये मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में 470 रुपये फी किलो तक लहसुन की फरोख्त की जा रही है। अदरक 10 रुपये महंगा किया गया, 650 रुपये सरकारी रेलिस में कीमत है, लेकिन अदरक की फरोख्त जो है वो 750 रुपये फी किलो तक की जा रही है। अगर सब्जियां जिनकी कीमतों में इजाफा किया गया, उसमें आलू 1 रुपये महंगा करके 50 रुपये मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में 70 रुपये फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह शिमला मिर्च 120 रुपये फी किलो मुकर्रर की गई, लेकिन 130 से 140 रुपये फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। इसी तरह अरबी 150 रुपये मुकर्रर किया गया, लेकिन 180 रुपये फी किलो तक जो है फरोख्त की जा रही है। गाजर 11 रुपये महंगे करके 85 रुपये फी किलो मुकर्रर की गई, लेकिन मार्केट में गाजर जो है 100 रुपये फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। 4 फल महंगे किए गए आज। केला की कीमत में मुसलसल इजाफा किया जा रहा है। आज भी 10 रुपये महंगा करके 200 रुपये दर्जन मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में 390 रुपये फी दर्जन तक केला जो है फरोख्त किया गया। पपीता 5 रुपये महंगा करके 225 रुपये मुकर्रर किया गया, 280 रुपये फी किलो तक। खरबूजा 5 रुपये इजाफे के बाद 155 रुपये, लेकिन मार्केट 230 रुपये फी दर्जन तक फरोख्त किया जा रहा है। मौसमी 5 रुपये इजाफे के बाद 195 रुपये मुकर्रर की गई, लेकिन मार्केट में 380 रुपये फी दर्जन तक फरोख्त की जा रही है। इसी तरह अमरूद जो है 5 रुपये महंगा करके 165 रुपये मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में यही अमरूद 250 रुपये फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह दीगर तमाम सब्जियां और फल जो है वो सब नामों के बरक्स मार्केट में महंगे दामों फरोख्त की जा रही है। ठीक है अब्दुल कादिर, बहुत शुक्रिया आपका। और यहाँ आपको बताएं कि मुफ्त आटे का हुसूल अवाम के लिए इम्तिहान बन गया है। पहले शनाख्ती कार्ड की तस्दीक का मैसेज, फिर घंटों लाइनों में लगकर इंतजार की जहमत। चाइनास की मॉडल बाजार में मुस्तहकीन ख्वार हो गए हैं। शहरी कहते हैं कि रोज़े की हालत में सिर्फ एक आटे की बोरी के लिए तकलीफ उठा रहे हैं। जैन अली की रिपोर्ट देखिए। मुफ्त आटा दस्तियाबी आसानी के बजाय आवाम के लिए इम्तिहान बनने लगी। लंबी कतारें, मुफ्त आटा किसी को मिला, कोई मायूस सी लौट गया। पहले शनाख्ती कार्ड की तस्दीक का मैसेज, फिर घंटों लाइन में लगकर इंतजार की जहमत। एक माह में 10 किलो आटे के 3 थैले मिलेंगे। पहले थैले के 1 हफ्ते बाद दूसरा थैला और फिर तीसरा थैला दिया जाएगा। रोजेदारों की बड़ी तादाद चाइना की मॉडल बाजार में मुफ्त आटा पॉइंट्स पर ख्वार होने लगी। वो बार बार यही कह रहे हैं 2 दिन बाद आओ, 2 दिन बाद आओ। कितने दिन गुजर गए ना, पर वो 2 दिन नहीं खत्म हो रहे। लाइन च लगा के जलील करते पे। हम कार्ड लेके इधर आते हैं, वो कहते हैं आपका कार्ड स्कैन ही नहीं हुआ। जब भी हम मैसेज करते हैं उसका मैसेज रिप्लाई आता है तो वो कहते हैं नहीं ये नहीं है, जो हमारे पास आएगा फिर हम बताएंगे आपको। शहरी कहते हैं रोजे की हालत में सिर्फ एक आटे की बोरी के लिए तकलीफ उठा रहे हैं। निगरान हुकूमत परेशानी से निजात दिलाए। कैमरामैन मोहम्मद शहबाज के साथ जैन अली, लाहौर न्यूज़। महंगाई से बचने के लिए आवाम सस्ते बाजार, मुफ्त आटे पॉइंट्स और यूटिलिटी स्टोर पर किस्मत आजमाने लगे हैं, लेकिन हर जगह मुश्किलात का सामना है। यूटिलिटी स्टोर पर सस्ता आटा और घी दस्तयाब ही नहीं है। ज़ैनब की रिपोर्ट देखिए। छुट्टी के रोज भी यूटिलिटी स्टोर्स पर आवाम ख्वार होने लगे। सस्ती अशिया की खरीदारी के लिए आवाम स्टोर्स के चक्कर लगाने पर मजबूर। आटा और घी अक्सर यूटिलिटी स्टोर्स पर दस्तयाब ही नहीं। बागबानपुरा यूटिलिटी स्टोर्स पर भी मर्दो खवातीन आटे और घी का इंतजार करने लगे। अशिया जरूरिया की फराहमी के लिए सारिफीन को 2 कैटेगरी में तकसीम किया गया। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के रजिस्टर्ड सारिफ के लिए घी 300, चीनी 70 रुपए फी किलो मुकर्रर। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सारिफ के लिए 10 किलो आटे का थैला 400 रुपए में दस्तयाब। आम सारिफ को घी 490, चीनी 91 रुपए फी किलो और आटे का थैला 648 रुपए में मिल रहा है। आवाम का कहना है कि चीजें सस्ती करने के ऐलानात तो कर दिए हैं, लेकिन अशिया दस्तयाब भी तो हों।
सहूलत मुहैया करने का मकसद ये है कि जगह जगह छोटे छोटे स्टॉल लगा दें, लेकिन चीज़ मुहैया करें। लोग कितने सुबह से आए हुए हैं, किस लिए आए हैं कि उनके घर में अशिया ख़त्म हुई हुई है। सुबह 7 बजे के आए हैं, कल भी आए हैं, कुछ भी नहीं मिला। आज फिर आए, वो छोटी सी बच्ची को भी साथ में लेकर आए, हमें कुछ भी नहीं, सस्ता कह रहे थे, सस्ता भी नहीं दे रहे। शिनाख्ती कार्ड नंबर का नादरा से तस्दीकी मैसेज आने के बाद अशिया ज़रूरियात दी जाती हैं। नादरा के तस्दीकी मैसेज के जवाब में ताख़ीर की शिकायत आम है। मुनाफाखोरों को कोई लगाम डालने वाला ही नहीं है। माह मुक़द्दस में मनमानी कीमतें बढ़ाकर चीज़ें बेची जा रही हैं। फलों का भी यही हाल है। 50 से 100% तक इजाफा कर दिया गया है। शहरी बिलबिला उठे हैं। माह रमज़ान में फलों की कीमतों में 50 से 100% तक इजाफा हो गया। खरबूजा, स्ट्रॉबेरी, केला और दीगर फल सब अवाम की पहुंच से बाहर हो गए। सेब 300 से 400 रुपए फी किलो में मिल रहा है। खरबूजा 180 से 220 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा। केला 200 से 400 रुपए दर्जन में दस्तयाब। मुख्तलिफ शाहराहों पर लगे ठेले वालों और फल फरोशों ने मनमानी कीमतों में फल की फरोख्त शुरू कर रखी है। बैरूनी मुल्कों ਦੇ ਵਿੱਚ हर चीज़ सस्ती मिलन दी, लेकिन साडे मुल्क ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ गवर्नमेंट छुरी फेर लेंदी। गरीब बंदा जावे तो जावे किते, की खावे। रमज़ान ਦੇ ਵਿੱਚ रोजे रख के लोग फल खाते हैं, लोग अगराजात अपने पूरे कर देते, असी साड़ा रोना शुरू कर देने। दुकानदार कहते हैं महंगे दामों फल खरीद कर सस्ते दामों नहीं बेच सकते। हुकूमत हमें कह रही है कि 325 रुपये किलो सेब बेचो, हमें 375 रुपये किलो सेब मंडी में है। अब हम 300 रुपये 325 कैसे बेचें? ये हमें हुकूमत हमारा जवाब दे दे कि हम कैसे बेचें। नुकसान तो हम कर नहीं सकते, दिहाड़ी वाले बंदे हैं, दिहाड़ी नहीं लग रही, घर में वैसे ही हैं, खर्चे तो उतने ही हैं, दिहाड़ी लग नहीं रही। शहरियों का कहना है कि मुनासिब चेक एंड बैलेंस ना होने और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स व दीगर सरकारी इदारे अवाम को रिलीफ फराहम करने से आ रही हैं। कैमरामैन शाहबाज हनीफ के साथ अवैस महमूद, लाहौर न्यूज़। डॉलर के हवाले से खबर यह है कि एक हफ्ते के दौरान डॉलर की कदर में इजाफा हुआ है। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 1 रुपये 39 पैसे महंगा हुआ, जबकि 283 रुपये 20 पैसे पर बंद हुआ। तफसीलात के मुताबिक ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपये महंगा होकर 286 रुपये तक पहुंच गया है। एक हफ्ते में हुकूमत को कमर्शियल कर्ज की मद में 50 करोड़ डॉलर मौसूल हुए हैं। स्टेट बैंक के ज़खायर 28 करोड़ डॉलर इजाफे के साथ 4 अरब 59 करोड़ डॉलर हो गए हैं। माहिरीन का कहना है कि दरामदी बिल की तलब और बैरूनी कर्ज की अदायगी पर रुपए की कदर में कमी हुई है। बात कर लेते हैं कुछ ब्रायलर की। तो ब्रायलर की खपत के मुकाबले में सप्लाई में बेहतरी हुई है। ब्रायलर गोश्त की कीमत में 7 रुपये कमी हुई, 482 रुपये किलो हो गया है। अंडों की बात करें तो अंडों की कीमत फ़ी दर्जन 247 रुपये मुकर्रर कर दी गई है। मज़ीद क्या तफसीलात है अब्दुल कादिर बताएंगे। जी अब्दुल कादिर, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, पोल्ट्री मसनूआत के जो आज सरकारी महकनामे जारी किए गए हैं, इसमें ब्रायलर की कीमतों में कमी हुई है, क्योंकि ब्रायलर की खपत जो है मार्केट में मुसलसल कम हो रही है, जिसकी वजह से डिमांड एंड सप्लाई में बेहतरी हुई है। 7 रुपये फी किलो तक जो है वो ब्रायलर सस्ता किया गया। 482 रुपये कीमत आज मुकर्रर की गई। इसी तरह जिंदा ब्रायलर की कीमत में 5 रुपये की कमी की गई है। होलसेल जिंदा ब्रायलर 313, जबकि परचून जिंदा ब्रायलर की कीमत 321 रुपये फी किलो मुकर्रर की गई है। अंडों की कीमतों में मुसलसल जो है वो इजाफा देखने को मिल रहा है। आज अंडों की कीमत में 3 रुपये फी दर्जन तक का इजाफा किया गया है। 244 से कीमत बढ़ाकर 247 रुपये मुकर्रर की गई है। मार्केट में अंडों की पेटी जो है 7290 की जो है फरोख्त की जा रही है, जबकि फी अंडा शहरियों को जो है 22 रुपये तक फरोख्त किया जा रहा है, यानी कि 250 से 260 रुपये फी दर्जन तक अंडे फरोख्त किए जा रहे हैं। इस हवाले से शहरियों का ये कहना है कि अंडों की कीमतों में मुसलसल इजाफा देखने को मिल रहा है। गुज़िश्ता एक हफ्ते से अंडे रोजाना की बुनियाद पर महंगे किए जा रहे हैं और इंतजामिया सिर्फ सरकारी महकनामे जारी करके अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रही है, लेकिन अंडों की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए कोई इक़दाम नहीं किए जा रहे। बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर आपका। साफ पानी की अदम दस्तयाबी और जगह जगह कूड़े के ढेर। गढ़ी शाहू का इलाका मसाइल का गढ़ बन चुका है। मजीद बता रहे मुबीन हैदर अपनी इस रिपोर्ट में। पीने के साफ पानी की अदम दस्तयाबी और कूड़े के ढेर। गढ़ी शाहू के इलाके नवाजी स्ट्रीट का कोई पुरसाने हाल नहीं। इलाका कचरा कुंडी का मंजर पेश करने लगा। इलाका मकीन इंतजामिया और हुकूमती नुमाइंदों से शिकवा करते हैं कि कई बार तवज्जो दिलाई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो सकी। यहाँ पे ये जो गटर का ढक्कन है ये 2 महीने से टूटा हुआ है, जिसको अभी तक रिप्लेस नहीं किया गया। अगर ये ऐसे सिलसिला रहेगा तो जो यहाँ से गुजरना बड़ा महाल है। तो हायर अथॉरिटी को चाहिए कि वो इसका नोटिस ले और अपना फौरी तौर पे इसको जो है ना
सही कराया जाए। पानी खड़ा है और इसके अलावा यह है कि गटरों के ढक्कन गायब हैं जो हादसात का मौजूद बनते हैं। शहरियों का कहना है कि गुज़श्ता 6 माह से इलाके का हुलिया बिगड़ चुका है, लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं। हुकूमत वक्त से मुतालिबा है कि देरीना मसाइल पर तवज्जो दी जाए। कैमरामैन सद्दाम हुसैन के साथ मुबीन हैदर, लाहौर न्यूज़। यहाँ आपको बताते चलें कि ज़मान पार्क के बाहर से एक गाड़ी चोरी हो गई है। बनेर के रिहायशी फजल अकबर नामी शख्स की गाड़ी चोरी हो गई है। शहरी ने थाना रेस कोर्स में इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त दायर कर दी है और ताहाल मुकदमा भी दर्ज न हो सका। मोहम्मद अली हमारे साथ मौजूद हैं। अली, आगाह कीजिएगा, क्या मामला पेश आया? जी, शहरी जोन से बुनेर का रिहायशी है और ज़मान पार्क में आज 3 बजे के करीब पहुंचा था और इसने यहाँ पे सैरी की और इसने काफिले के साथ इस्लामाबाद जाना था इमरान खान के साथ। लेकिन जैसे ये गाड़ी खड़ी करके हॉल के अंदर गया जहाँ पे सैरी का एहतमाम किया जाना था, पीछे से नामालूम अफराद इसकी गाड़ी चोरी करके ले गए। गाड़ी का नंबर भी आ गया है 2005 मॉडल है, वाइट करोला, जबकि इसका नंबर है 0305। वाइट कलर करोला है, 2005 मॉडल है, गाड़ी का चेसी नंबर है और इसका इंजन नंबर भी सामने आ गया। जबकि इसकी डॉक्यूमेंट्स जो है वो इस शख्स के पास इसने इंदराज मुकदमा के लिए मुतलका थाने दरख्वास्त दे दी, जिसका ताहाल मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। जी, मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। अली हमारे साथ मौजूद है। अली, बहुत शुक्रिया आपका। और यहाँ आपको बताएं, शहर में नए ट्यूबवेल्स की तनसीब में वासा की गैर संजीदगी का ये मामला है। गुज़िश्ता 5 साल में सिर्फ एक नया ट्यूबवेल ही लग सका है और 8 ट्यूबवेल्स की तनसीब के लिए PHA ने NOC भी नहीं दिया, जबकि वासा ने ट्यूबवेल्स की तनसीब के लिए फंड्स भी मुकम्मल खर्च न किए। लाहौर के बासियों को साफ पानी की फराहमी के मंसूबे पर कदगन लग गया। वासा ने नए ट्यूबवेल्स की तनसीब से मुतालिक तरजीहात तब्दील कर लीं। 5 साल में सिर्फ एक नया ट्यूबवेल ही लग सका। यूनियन कौंसिल 87, 214, 199 और 217 में नए ट्यूबवेल्स की तनसीब का मंसूबा अमल दरामद का मुंतजिर। 4 यूनियन कौंसिल्स में नए ट्यूबवेल्स की तनसीब के लिए फंड्स खर्च ना हो सके। कराची मोहल्ला वार्ड नंबर 1 में ट्यूबवेल की तनसीब के लिए सिर्फ 80 लाख रुपए का बजट रखा गया। PP 159 और यूनियन कौंसिल 232 में भी नए ट्यूबवेल्स ना लग सके। UC 156 और UC 48 में ट्यूबवेल लगाने के लिए मुकम्मल फंड्स मुख्तस ना हुए। वासा ने रवा माली साल 16 नए ट्यूबवेल्स की तनसीब का मंसूबा बनाया। PHA की जानिब से पार्क्स की अराजी पर ट्यूबवेल्स लगाने से रोका गया। PHA ने वासा को 8 मकामात पर ट्यूबवेल्स की तनसीब की ताहाल इजाजत ना दी। PHA की जानिब से NOC के इजरा का मामला मुसलसल इल्तवा का शिकार है। रुस्तम पार्क, इस्लामिया पार्क, डोंगी ग्राउंड समनाबाद और सब्जाजार में ट्यूबवेल लगाने के लिए NOC ना मिला। काजी टाउन, सैदपुर और जिना कॉलोनी में ट्यूबवेल लगाने के लिए भी NOC का इंतजार। वासा इंतजामिया का कहना है कि NOC ना मिलने पर मुतबादिल मकामात पर ट्यूबवेल्स लगाए जाएंगे। LDA सिटी हाउसिंग स्कीम मंसूबा पंजाब हुकूमत का स्कीम में चीनी कौंसलेट की तामीर का फैसला किया गया है। मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से स्टेट ऑफ द आर्ट मस्जिद भी बनाई जाएगी। LDA ने 2 अहम अमला की तामीर से मुतालिक हिकमत अमली मुरतब कर ली है। LDA सिटी हाउसिंग स्कीम में इमलाक से मुतालिक बड़ी पेशरफ। LDA सिटी हाउसिंग में चीनी कौंसलेट बनाने का फैसला। पंजाब हुकूमत चीनी कौंसलेट की तामीर करेगी। मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से LDA सिटी में स्टेट ऑफ द आर्ट मस्जिद तामीर करवाई जाएगी। LDA इंतजामिया ने चीनी कौंसलेट और मस्जिद के लिए जगह मुख्तस कर दी। UAE के ताउन से चिनाब रोड के करीब मस्जिद तामीर की जाएगी। मस्जिद की तामीर के लिए 64 कनाल अराजी मुख्तस की गई है। मस्जिद के लिए अराजी में तोसी करके 100 कनाल की जाएगी। 20 कनाल अराजी पार्किंग के लिए मुख्तस होगी। चीनी कौंसलेट रिंग रोड के करीब तामीर किया जाएगा। रिंग रोड से चीनी कौंसलेट को बराह रास्त रसाई दी जाएगी। LDA इंतजामिया ने दोनों इमलाक की तामीर से मुतालिक चीफ सेक्रेटरी पंजाब को प्लान जमा करवा दिया है। शहर लाहौर के बड़े पार्क्स में गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड बनने का इंकशाफ सामने आ गया है। जश्न भारत की आड़ में सादालू शहरियों से पार्किंग फीस लेने वाला गिरोह फिर मुतहरिक हो गया है। जिलानी पार्क, रेस कोर्स और बाग-ए-जना, गुलशन इकबाल पार्क में पार्किंग फीस की वसूली शुरू कर दी गई है। लाहौर की सड़कें और पार्क्स गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड माफिया के नेरगे में आने लगे। बड़े पार्कों के बाहर गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड बनने का इंकशाफ शहबाज शरीफ ने बतौर वजीर आला पार्कों में पार्किंग फीस खत्म की थी। अब जश्न बहारा की आड़ में सादा लू शहरियों से पार्किंग फीस लेने वाला गिरोह फिर मुतहरिक हो गया। जश्न बहारा फेस्टिवल में PHA ने जिलानी पार्क में 15 रोज के लिए पार्किंग फीस लेने की इजाजत दी। फेस्टिवल खत्म होने के बाद भी पार्किंग फीस वसूल की जा रही है।
फेस्टिवल की आड़ में बागे जना और गुलशन इकबाल पार्क में भी पार्किंग फीस की वसूली शुरू कर दी गई। PHA अफसरों की मुबैना मिली भगत से सरकारी अराजी से प्राइवेट ठेकेदार पैसे वसूल कर रहा है। गैर कानूनी स्टैंड से गाड़ियों, मोटरसाइकिलों और रिक्शों से गैर कानूनी पार्किंग फीस की वसूली गैर कानूनी अमूर के खिलाफ इंतजामिया कार्रवाई से गुरेजा है। प्राइवेट अफराद ने झांसा देने के लिए PHA के पुराने नोटिफिकेशन का अक्स लगा रखा है। लाहौर न्यूज की निशानदही पर DPHA ताहिर वट्टू ने नोटिस ले लिया और 24 घंटों में मुतलका प्रोजेक्ट डायरेक्टर से रिपोर्ट तलब कर ली। PHA इंतजामी अमूर चलाने के लिए मुश्किलात से दो चार हो गई है। गुज़िश्ता 5 बरसों में इदारे का रेवेन्यू मुसलसल कम हुआ। माली मुश्किलात के बायस अथॉरिटी के 3000 मुलाजमीन तनख्वाहों से महरूम हैं। पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी शदीद माली मुश्किलात का शिकार। PHA के पास इंतजामी उमूर चलाने के लिए फंड्स मौजूद नहीं। शोबा मार्केटिंग की मुबैना नाअहली के सबब PHA शदीद माली मुश्किलात का शिकार है। गुज़श्ता 5 बरसों में हर साल इदारे का रेवेन्यू मुसलसल कम हुआ। PHA के शोबा मार्केटिंग की जानिब से गुज़श्ता बरसों में रिकवरी ही ना की गई। माली साल 2017-18 में PHA ने रेवेन्यू के मद में 75 करोड़ रुपए की रिकवरी की। माली साल 2018-19 में रिकवरी कम होकर 71 करोड़ रुपए हो गई। माली साल 2019-20 में 45 करोड़ रुपए रिकवरी हुई। माली साल 2020-21 में PHA के रेवेन्यू की मद में कारकर्दगी मायूस कुन रही। सिर्फ 20 करोड़ रुपए की रिकवरी हो सकी। फंड्स ना होने से 3000 डेली वेजेस मुलाजमीन को माह फरवरी की तनख्वाह ना मिली। मुलाजमीन ने तनख्वाहों की अदायगी के लिए PHA को दरखास्त दे दी। PHA इंतजामिया का कहना है कि माजी में रिकवरी में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। रेवेन्यू बेहतर करने के लिए इस्लाहात ला रहे हैं। खबर ये भी है कि वासा के करप्ट अफसरान इंक्वायरियों से बच गए हैं। 100 से ज़ायद अफसरान पर जारी इंक्वायरियों के नताइज 1 साल से सामने ना आ सके। इंक्वायरियों को मुकम्मल करने के लिए अफसरान को दोबारा याद दहानी मुरासला लिख दिया गया है। वासा अफसरान भी अपने साथियों को बचाने में मसरूफ। 100 से जायद अफसरान और मुलाजमीन की करप्शन केसेस में इंक्वायरियां इल्तिवा का शिकार हैं। डायरेक्टर एडमिन ने वासा अफसरान को दोबारा याद दहानी मरासला लिख दिया। 1 साल से इंक्वायरी का फैसला न होने का इंकशाफ। इंक्वायरियों का फैसला न होने से करप्ट अफसरान और मुलाजमीन एजेंसी में तैनात हैं। मरासले में अफसरान को पीडा एक्ट के तहत इंक्वायरी मुकम्मल करने की हिदायत कर दी गई है। तरक्याती कामों में बेज़ाब्तियों, बगैर टेंडर तामीराती काम और डीजल स्कैंडल की इंक्वायरी मुकम्मल ना हो सकी। रेवेन्यू स्कैंडल, रिश्वतखोरी की इंक्वायरी के नताइज भी ना निकल सके। डायरेक्टर एडमिन वासा का कहना है कि MD वासा के अहकामात पर इंक्वायरियां जल्द निपटाने का फैसला किया गया है। तमाम इंक्वायरी अफसरों को मरासले के जरिए इंतबा कर दिया गया है। इल्तिवा का शिकार इंक्वायरियों की रिपोर्ट जल्द मुकम्मल कर ली जाएगी। वासा इंतजामिया जून 2022 से मार्च 2023 तक कोई मेगा प्रोजेक्ट शुरू न कर सकी। माली साल के 9 माह में वासा ने नई तरक्याती स्कीमों पर तवज्जो ही न दी। सालाना तरक्याती प्रोग्राम पर अमल दरामद एजेंसी के लिए मामला बन गया है। माली साल के 9 माह में वासा इंतजामिया नई तरक्याती स्कीमों पर तवज्जो ना दे सकी। जून 2022 से मार्च 2023 तक कोई मेगा प्रोजेक्ट शुरू ना किया गया। सालाना तरक्याती प्रोग्राम पर अमल दरामद रिपोर्ट में चश्मकुशा इंकशाफात सामने आ गए। पंजाब हुकूमत ने वाटर सप्लाई और सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करने के मंसूबे दिए। रवा माली साल में वासा को 50 करोड़ 64 लाख रुपए की 17 स्कीमें शुरू करने की मंजूरी दी गई। वासा इंतजामिया ने 17 स्कीमों पर काम का आगाज ही ना किया। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बाबू साबू के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट ना बन सका। गैर मुल्की ग्रांट से PMU पर 6 करोड़ 14 लाख रुपए लागत आना थी। शाह जमाल रोड पर सीवरेज सिस्टम तब्दीली के लिए 1 करोड़ रुपए का तखमीना फाइलों में बंद है। हरबंसपुरा और मुल्हका इलाकों में नया ट्रंक सेवर बिछाने के लिए 7 करोड़ 50 लाख रुपए से काम शुरू होना था। शिमला हिल, फरखाबाद, दातानगर, अनारकली और रावी रोड के इलाकों में फी कस 1.5 करोड़ रुपए का बजट इस्तेमाल न किया गया। वासा इंतजामिया का कहना है कि सालाना तरक्याती प्रोग्राम पर अमल दरामद के लिए हुकूमत को फंड्स की इस्तदा की गई। खातिर खा फंड्स ना मिलने से तरक्याती काम मुतासिर हुए। टिम्बर माफिया लाहौर में भी सरगर्म हो गए हैं। केनाल रोड पर हरबंसपुरा से BRB तक PHA हमले की मुबैना मिली भगत से दरख्त कटवाकर फरोख्त कर दिए गए हैं। टिम्बर माफिया के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में दर्ज मुकदमात भी मंजर आम पर आ गए हैं।
शहर में जारी क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान मुहिम को बड़ा धचका। मुख्तलिफ इलाकों से तनावर दरख्तों का कत्लेआम। टिम्बर माफिया ने PHA अमला से मिली भगत करके दरख्तों की कटाई करवा कर फरोख्त कर दिए। केनाल रोड पर हरबंसपुरा से BRB तक दरख्त काटे गए। टिम्बर माफिया के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में दर्ज मुकदमात भी मंजर आम पर आ गए। PHA अमला और टिम्बर माफिया के खिलाफ 4 मुकदमात दर्ज करवाए गए। FIRs के मुताबिक बर्लिप नहर 21 फरवरी को हरबंसपुरा के करीब बांस के दरख्तों के 70 झुंड काटे गए। बांस के झुंड काट कर पप्पू नामी ठेकेदार ने फरोख्त किए। PHA मलकियती दरख्त अकरम नामी ठेकेदार को फरोख्त किए गए। PHA सुपरवाइजर सैयद आसिम शाह टिम्बर माफिया के सरपरस्ती में मुलव्विस हैं। टिम्बर माफिया के खिलाफ दर्ज होने वाली दूसरी FIR में बताया गया कि हरबंसपुरा से डयाल हाउस तक बेशुमार दरख्त काटे गए। 8 लाख रुपए मालियत के दरख्त फरोख्त किए गए। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। रिंग रोड नवाज शरीफ इंटरचेंज के करीब अंडरपास बनाने के लिए LDA और DHA के दरमियान मामला तय पा गए हैं। पंजाब हुकूमत ने मंसूबे को शुरू करने के लिए ग्रीन सिग्नल भी दे दिया है, जबकि 2 अरब रुपए के मंसूबे के लिए दोनों अथॉरिटीज़ 50% रकम अदा करेंगे। रिंग रोड के साथ एक और अंडरपास बनाने का फैसला। LDA और डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी मुश्तरका फंडिंग से अंडरपास तामीर करेगी। पंजाब हुकूमत ने LDA को मंसूबा शुरू करने के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। रिंग रोड के साथ नवाज शरीफ इंटरचेंज के करीब अंडरपास तामीर किया जाएगा। LDA ने मंसूबे का इब्तदाई डिजाइन मुरतब कर लिया। लाल शहबाज कलंदर अंडरपास की तर्ज पर नवाज शरीफ इंटरचेंज से मुलाहिका दोनों अतराफ 2-2 लेन का अंडरपास बनेगा। नए अंडरपास की तामीर के लिए 2 अरब रुपए का तखमीना लगाया गया है। 1 अरब LDA और 1 अरब रुपए DHA फराहम करेगा। DHA ने अंडरपास की तामीर में फंड्स फराहम करने की यकीन दहानी करवा दी है। DHA की जानिब से LDA को 3 अक़सात में रकम फराहम की जाएगी। LDA ने डिजाइन की कंसल्टेंसी के लिए नस्पाक से रुजू कर लिया। नवाज शरीफ इंटरचेंज के साथ बनने वाले अंडरपास में लैंड एक्विजिशन नहीं की जाएगी। कैमरा टीम के साथ ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। 2 साल से ज़्यादा अरसा बीत गया और इस ट्रेन के अहदाफ पूरे ना हो सके। मास ट्रांजिट अथॉरिटी को रोज़ाना लाखों रुपए के खसारे का सामना है और इस ट्रेन से मुलाहिका पब्लिक ट्रांसपोर्ट के रूट बंद होने से भी मुसाफिरों की तादाद में कमी होने लगी है। अली टाउन से डेरा गुजरां तक ऑरेंज ट्रेन मतलूबा नताइज ना दे सकी। ऑरेंज ट्रेन में रोजाना 2.5 लाख मुसाफिरों के सफर करने की गुंजाइश। 2 साल के अरसे में ऑरेंज ट्रेन में रोजाना औसतन 65,000 मुसाफिर सफर करने लगे। मुसाफिरों की तादाद कम होने से ट्रेन को लाखों रुपए के खसारे का सामना। मुसाफिरों की तादाद कम होने की वजूहात से मुतालिक मैस ट्रांजिट अथॉरिटी ने रिपोर्ट तैयार कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक ऑरेंज ट्रेन के साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट की वजह से मुसाफिर ट्रेन का रुख नहीं करते। अगर रोजाना 2 लाख लोग सफर करें तो ट्रेन अखराजात पूरा कर सकेगी। मुसाफिर ट्रेन का सफर महंगा होने के सबब निजी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा ले रहे हैं। मैस ट्रांजिट अथॉरिटी ने महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब को ट्रेन रूट पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद करने की इस्तदा कर दी। लाहौर में रूफटॉप गार्डनिंग को फ़रोग देने के लिए बड़ा फैसला सामने आ गया है। रूफटॉप गार्डनिंग के लिए बिल्डिंग एंड जोनिंग रेगुलेशन 2019 में तरमीम कर दी गई है, जबकि LDA के शोबा टाउन प्लानिंग ने इस ज़मीन में पब्लिक नोटिस भी जारी कर दिया है। लाहौर को माहौलियाती आलूदगी से बचाने के लिए अदालती अहकामात पर अमल दरामद। LDA का शहर में शजरकारी को फरोग देने के लिए बड़ा फैसला। लाहौर की कमर्शियल इमारतों के लिए रूफ टॉप गार्डनिंग लाजिम करार दे दी गई। LDA ने नए कवानीन नाफिज कर दिए। रूफ टॉप गार्डनिंग के लिए बिल्डिंग एंड जोनिंग रेगुलेशंस 2019 में तरामीम कर दी गयी। रूफ टॉप गार्डनिंग के लिए मुख्तस 25% एरिया को बढ़ाकर 50% कर दिया गया। LDA की शोबा टाउन प्लानिंग ने इस ज़मन में पब्लिक नोटिस जारी कर दिया। रूफ टॉप गार्डनिंग के फरोग से माहौलियाती आलूदगी में कमी होगी। शहरी कमर्शियल व दीगर इमारतों की छत पर बागबानी करेंगे। कमिश्नर लाहौर व DG LDA मोहम्मद अली रंधावा कहते हैं, रूफ टॉप गार्डनिंग के लिए प्राइवेट सेक्टर का ताउन भी हासिल किया जा रहा है। रूफ टॉप गार्डनिंग से स्मोक के तदारुक में भी मदद मिलेगी। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। शहर को खूबसूरत बनाने का मिशन कमज़ोर पड़ने लगा है। पंजाब हुकूमत ने शजरकारी और खूबसूरती के लिए फंड जारी ही नहीं किए। शहर के 21 मकामात पर शजरकारी का मंसूबा खतरे में पड़ गया है। शहर लाहौर की ग्रीन बेल्ट में घास ना होने से खूबसूरती मांद पड़ गई। हुकूमत ने PHA को शहर की खूबसूरती का टॉस सौंपा और रिपोर्ट तलब की। PHA की जानिब से जमा करवाई गई रिपोर्ट पर हुकूमत अमल दरामद करवाने से कतराने लगी। PHA को शहर की ब्यूटिफिकेशन में बड़ी रुकावट का सामना। शहर के 21 दाखिली रास्तों को खूबसूरत बनाने की निशानदही की गई। हुकूमत की जानिब से शजरकारी और खूबसूरती के लिए फंड्स मुहैया न किए जा सके। PHA ने फंड्स की इस्तदा और शजरकारी से मुतालिक रिपोर्ट सेक्रेटरी हाउस ऑफिस में पेश कर दी। बारिश के बाद डेंगू मच्छर बेकाबू होने का खदशा बढ़ चुका है। महकमा सेहत की जानिब से हंगामी बुनियादों पर इक़दाम शुरू कर दिए गए। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर लाहौर डॉक्टर जाहिद मुनीर कहते हैं कि शहर में 30,444 डेंगू हॉटस्पॉट एरियाज मौजूद हैं।
बदलते मौसम में डेंगू मच्छर को कंट्रोल करने के लिए इकदाम। महकमा सेहत की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों में डेंगू सर्वेलेंस शुरू करवा दी गई। शहर के 10 टाउन्स में डेंगू स्क्वाड तश्कील दे दिए गए। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर लाहौर डॉक्टर जाहिद मुनीर कहते हैं इंडोर और आउटडोर टीमें डेंगू सर्वेलेंस करेंगी। तमाम डेंगू हॉटस्पॉट इलाकों पर फोकस किया जाएगा। डेंगू के लिए इस वक्त इंडोर और आउटडोर टीम जो सी हैं वो हर टाउन के अंदर तश्कील दे दी गई है, जो कि हर घर को विजिट कर रही हैं और वहाँ पर 30 के करीब घरों को उनको टारगेट दिया गया है। इसके अलावा आउटडोर टीम्स भी विजिट करती हैं जहाँ से डेंगू का लार्वा मिलता है, वहाँ पर वो SOP के अकॉर्डिंगली वहाँ पर स्प्रे करते हैं। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर लाहौर का मजीद कहना था कि शहर में तमाम हाउसिंग स्कीमों में भी डेंगू लार्वा की अफजाइश को रोका जाएगा। डेंगू लार्वा बरामद होने पर सख्त एक्शन होगा। कैमरामैन शहबाज के साथ मोहम्मद बिलाल, लाहौर न्यूज़। रमज़ानुल मुबारक के आगाज़ पर भी महंगाई के वार जारी हैं। इफ्तार दस्तरखान का लाजमी जुज़ खजूरों की कीमतें बढ़ गई हैं। खजूरें 500 रुपये से 3200 रुपये किलो तक बिकने लगी हैं। माह सयाम में भी महंगाई की दुहाई। इफ्तार दस्तरखान का लाजमी जुज़ खजूरों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। गुज़श्ता साल 200 रुपए में मिलने वाली खजूरें 500 रुपए फी किलो तक मिलने लगी। मार्केट में 12 इकसाम की खजूरें 500 से 3200 रुपए फी किलो तक बिकने लगी हैं। जैदी खजूर 500 रुपए, चॉकलेट 800, कलमी खजूर 900 रुपए फी किलो में फरोख्त। ईरानी खजूर 800, अजवा खजूर 2400, सऊदी कलमी खजूर 1800, सऊदी मबरून 2600 रुपए किलो मुकर्रर। सकरी 2400 रुपए, सक्कल खजूर 2800, मजदूर और अजवा। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। बाखबर रहने के लिए देखते रहिएगा।